Respected students, welcome back everyone. Today's video is about Power Query Editor. ठीक है? There will be 2 to 3 parts made on Power Query Editor. The things or the transformations which are required in real-time project. ठीक है? Everything I will show you practically. I will tell you what are the things which are required in Power Query, mostly from all these tabs: home, transform, add column, view. Mostly 4 tabs are there which are important, and around 20 to 25 things which are important. Everything I will tell you how it is work, how we need to work in real time project, everything. ठीक है? So this is the first part actually, so stay till the end. And if you are new on our channel, make sure you are subscribing and pressing bell icon for all upcoming videos. Follow us on social media, especially Instagram, Telegram. All the social media links are given in description box. ठीक है? So this is the project YT, and you are familiar with this data set. ठीक है? On this data set only, how end-to-end real-time projects are there, how business analysis done or sample reports we get, how to create report, how to validate those number in SQL, how QA team works. Everything I had explained in those 3 parts. If you have not watched that, if you have not seen that 3 parts project end to end, you can also see that. But this specific video will be made on Power Query only. ठीक है? Upcoming 2 3 videos which will be there. So today 8 to 9 points we will discuss, which I know now. ठीक है? Which I have kept in my mind that today I will tell you. See, first of all, when you get view, consumption view or store procedure from database team, ठीक है? You fetch from the sources there. ठीक है? What you do, if earlier, if this any consumption your store procedure is there, you just take duplicate reference of it. ठीक है? And then from source again you go and you fetch it, whatever the consumption view is there from your database. Right now I am having limitation here, so it is not connected to our database as this is Excel data source. So if SQL or Snowflake is there, you just go to this source, you fetch that name from that database and you fetch it. Okay, this is the way. So now you all know this database. First is account tables is there, campaigns, cases, contact. In this account we are also having, see, the most important is account name. Okay. Then see, state, city, everything is there. Okay. Annual revenue, this is our fact business numbers. Okay. Number of employees, everything. So see, now directly let's start with the video. The first thing in real time projects, what is there is known as concatenation. It is known as merge. ठीक है? Concatenation or this merge. So what we do in that, we combine the two columns. ठीक है? If you are having column as account name and account number, see, we are actually really lucky because in this data set also account name and account number is there, because in real time projects also same example is there. ठीक है? We have to concatenate those two columns as client want to see that properly. ठीक है? So what we will do now, see, this account number is there. I have clicked on control. You are having this data set, or also again I will upload that in our description box. This account number is there. Just scroll to right side, control, using control, account number. ठीक है? Go to this merge. ठीक है? Separator you can take custom, mostly take custom. Here click 2 times space dash and 2 times space. ठीक है? And you can rename this as account details like this and do OK, and do this in add column tab. Don't do in transform. ठीक है? Add column is in transform. If you will do on that column only, it will do that concatenation. But if you will do this with add column tab, now it will create new column. See, account number column is there as it is here, and here account name also as it is there. It has created the new column. That's the very important thing. ठीक है? Also you can write with DAX or with calculate column also. You can do concatenation of two columns,
but right now we are working in Power Query. This video is specifically of Power Query. That's the reason why I'm showing you in Power Query. Okay, here also see in formula bar you are able to see this two dash and this dashes. Sorry, two spaces at left, two spaces at right, and then this dash. And make sure that you learn to read this M language, this formula bar fx. Okay, that is the very important thing. This text combine. Okay, this is part of M language. So now we will go and do close and apply. Now let me check which column, which table we have used here. Cases we have used. Okay, and I will show you how in real time project it is shown. Opportunities. Okay, okay, no issues. We will actually take then. Okay, sixth page. Okay, I am removing this and account table was there and account detail was there. Okay, like this it will show. Every client, mostly I'm guaranteeing you, every client need to see the account details properly like this. If two columns are there like account name, account number, na, he will 100% tell you to do this concatenation so that properly he is able to see with this dash. Even you can give more spaces also here. Like I have only given two spaces at left and right. You can give more. This thing client needs. And again then he can see city, country like this. Okay. Oh, sorry, it is becoming hierarchy. Okay. Like this, they need to see it properly. That's the reason why we do concatenation of columns like account name, account number, or any might be there, country, state, city, like this hierarchy. If it is there, then they will tell to do concatenation of that also. Okay. This was the first thing. Second is see this enter data. If you want to create manually table in Power Query with this enter data, you can do it. Okay, if you want then you can do it. I will show you how to do this. First, this is column name, this is column 2. Okay, let's rename it as first name, last name. Okay, Virat Kohli, Rohit Sharma. Okay, and here you have just rename the column names and also table you can rename. Okay, and do this, enter. Now here new table will come. And again, for example, let me tell you one thing. This was the interview question which I had faced. I will tell you. Even I had got this interview question that how can you manually create table in Power Query, and then उन्होंने मुझे वहां पे एक क्वेश्चन पूछा कि मैन्युअली आपने टेबल बनाया, इफ यू हैव क्रिएटेड द मैन्युअली टेबल इन पावर क्वेरी, नाउ इफ यू हैव टू ऐड एनी कॉलम हियर और रो, तो फिर कैसा करेंगे? तो इसका आंसर देने के बाद द वन हु वाज इंटरव्यू पैनलिस्ट ना, ही वाज रियली हैप्पी बिकॉज बहुत लोगों को ये पता नहीं होता. सिर्फ आपको यू हैव टू जस्ट गो इन सोर्स, क्लिक हियर, दैट्स इट. ठीक है, देन आप देखो ये बना सकते हो फिर आपको जैसा चाहिए फिर. ठीक है, आपके सामने आपने देखा. तो इस प्रकार से देन फिर आप बना सकते हो मैन्युअली टेबल. नाउ आई एम डिलीटिंग इट राइट नाउ. ठीक है, दिस इज द सेकेंड थिंग. थर्ड थिंग जो रियल टाइम प्रोजेक्ट में इंपॉर्टेंट है, सी दैट इज रिफ्रेश प्रीव्यू. ठीक है, सो वेन एवर इफ न्यू डेटा इज लोडेड, नो डाउट schedule refresh is there, everything is there, automatically everything is going to happen. बट स्टिल अगर schedule refreshes happen, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट मैं एक चीज आपको बताता हूँ क्या होता है ना रियल टाइम प्रोजेक्ट में.
आपने पावर बीआई की फाइल आपकी यूज कर रहे हो डेस्कटॉप में, आपके वीडीआई में या आपके आपके डेस्कटॉप में वो, ओके। उस पे डेट क्या है, 6/12 है उसमें लेटेस्ट। बट सोचो आज रात को वो रिफ्रेश हुआ और आपके पावर बीआई सर्विस में जो फाइल है उसमें 7 डेट दिखाएगा। बट व्हेन यू विल स्टार्ट वर्किंग टुमारो ऑन दिस पीबीआई फाइल ओनली, जो कि आपके डेस्कटॉप से आप यूज कर रहे हो, उसमें 6 तारीख की दिखाएगा वो। और गलती से अगर आपने काम करके वही पब्लिश किया विदाउट रिफ्रेश, तो आपके पावर बीआई सर्विस में भी वही 6 डेट दिखेगा। मतलब आज रात को जो रिफ्रेश हुआ था उसमें 7 दिखा रहा था, बट आपने कल क्या किया कि एक दिन पहले वाली ही पावर बीआई की जो फाइल है उस पर काम किया था और विदाउट रिफ्रेश आपने उसको पब्लिश किया, इस वजह से अगेन वो एक दिन पहले का ही उसमें डेटा दिखा है। तो क्या करने का ना, मोस्टली देखो ये रिफ्रेश प्रियो होता है ना, जब भी आप सुबह काम स्टार्ट करोगे, ठीक है, मेक श्योर दैट आइदर यू आर डाउनलोडिंग द लेटेस्ट फाइल फ्रॉम पावर बीआई सर्विस, और जो आपके पास जो फाइल थी, मतलब उसके लिए भी आपको रात को पब्लिश करना पड़ेगा। जो भी आपने लेटेस्ट चेंजेस किए वो पब्लिश करना पड़ेगा। और फिर रिफ्रेश होने के बाद जब आप सुबह काम स्टार्ट करोगे, मेक श्योर दैट यू आर downloading the latest file from Power BI service. This is the first thing what you can do. And the second thing, if you are either working on that Power BI PBX file only on next day, so make sure you are going in Power Query and do Power Query and doing this refresh preview. So refresh preview and refresh all. What is the difference? In refresh preview, it will just refresh this account table. ठीक है? In this refresh preview, it will just refresh this account table, and for refresh all ये सारा रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ पे आप देख सकते हो अभी इसमें डेटा बहुत कम है, तुरंत हो जाएगा। ठीक है, it will not take much time, like 10-20,000 rows are there in real time, 4-5 million rows are there। ठीक है, यहां से आपको रिफ्रेश प्रीव्यू करना है और मेक श्योर sure कि ये जो है ना, यहां से भी वो दूसरा वाला ऑप्शन जो मैंने बोला, यहां से भी एक बार रिफ्रेश लगा दो, सो दैट आपकी जो पीबीएक्स फाइल जो है, जो कि आपके डेस्कटॉप में यहाँ वहाँ कुछ ऐसी पड़ी होती है, और वो जो आप काम स्टार्ट करोगे ना, तो फिर वो पूरा कल वाला डेट होता है, फिर वो अभी रिफ्रेश करने के बाद वो फिर आज का लेटेस्ट डेट उसमें दिखाएगा। ठीक है, तो ये रिफ्रेश प्रीव्यू का ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, टिल मतलब रिफ्रेश होने तक बताता हूँ। ये जो क्वेश्चन है ना, ये पूछते हैं कि आप जब काम स्टार्ट करते हो अगले दिन, तब आप लेटेस्ट पीबीएक्स फाइल डाउनलोड करते हो वहां से, या फिर उसी फाइल पे काम करते हो। तो आप मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही बोल दो कि जो भी चेंजेस होते हैं वो रात को हम पब्लिश कर देते हैं उसमें, और फिर लेटेस्ट फाइल ही डाउनलोड करते हैं नेक्स्ट दिन, ये सबसे बेस्ट है। और अगर फिर भी आपने बोला कि नो डाउट दैट वी वर्क ऑन दैट सेम pbx फाइल, बट एट द मॉर्निंग वी डू रिफ्रेश फ्रॉम पावर क्वेरी एडिटर ऑल्सो एंड पावर बीआई डेस्कटॉप ऑल्सो, ये बहुत मतलब बढ़िया उनको लगेगा कि दोनों तरफ से कर रहे हो। एक तरफ से किया पावर बीआई डेस्कटॉप से भी, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल रिफ्रेश पावर क्वेरी से क्यों करना चाहिए? द रीजन व्हाई आई एम टेलिंग, बिकॉज वॉट एवर व्यू टेबल स्टोर प्रोसीजर यू आर फेच ना, यू आर फेचिंग फ्रॉम पावर क्वेरी इटसेल्फ। सो यहाँ पे रिफ्रेश करना सबसे बेस्ट है, जो मैं फॉलो करता हूँ। ठीक है, देन ये प्रॉपर्टीज है। देखिए ये मैंने स्पेसिफिक वीडियो, आई हैव आल्सो मेड स्पेसिफिक वीडियो ऑन दिस, सो यू कैन वॉच दैट, बट स्टिल आई विल टेल यू। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर फ्यू डेज यू थॉट दैट दिस स्टेटस जो टेबल है इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमारे रिपोर्ट में वगैरह आ रहा नहीं है, बट फिर भी आपको डेटा एनालिसिस करने के लिए यहाँ पे वो टेबल चाहिए। सो व्हाट यू कैन डू, नो नीड टू टेक दैट टेबल इन पावर बीआई डेस्कटॉप, यहाँ पे पावर क्वेरी पर रख सकते हैं, पावर बीआई डेस्कटॉप में लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको राइट क्लिक करना है और ये एनेबल लोड है, इसको डिसेबल करना है। और इसका फॉन्ट देख सकते हैं, ये चेंज होगा, अभी इटैलिक हो जाएगा। ठीक है, इसका फॉन्ट देखो। और जब आप क्लोज एंड अप्लाई करोगे, यहाँ पे स्टेटस टेबल है ना, अभी रिफ्रेश को यहाँ पे भी देखो, मैं यहाँ पे दिखा दूँ डेटा पेन में, अभी डेटा पेन में स्टेटस टेबल नहीं दिखेगा, कहीं पे भी यहाँ पे स्टेटस टेबल नहीं दिखेगा वो। ठीक है, और रिफ्रेश में भी नहीं दिखेगा आपको, देखिए यहाँ पे स्टेटस टेबल आपको नहीं दिखा वो। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं क्योंकि ये तुरंत रिफ्रेश हो रहा है,
क्योंकि डेटा सेट हमारा बहुत ही छोटा है। ठीक है, सो राइट नाउ आई एम अगेन अनेबलिंग दैट। तो ये एक प्रॉपर्टी का ऑप्शन है। तो ये देखिए चूज कॉलम वगैरह है, ये सबसे, हाँ, द रीजन व्हाई दिस चूज कॉलम is needed in real time project, because see some of the tables are like which has 200 columns, 150 columns. So if you have to see any column of sales revenue, market value, वॉट एवर इट इज देयर, जो भी होगा, लोकल प्राइस, ऐसा ना, तो आप ऐसा स्क्रोल करते नहीं बैठने का कभी कभी। ठीक है, जस्ट गो टू दिस चूज कॉलम। मैं पर्सनली क्या यूज करता हूँ, गो टू कॉलम और यहाँ पे ऐसा देखता हूँ, और यहाँ पे 200 कॉलम्स भी हो गए ना, स्क्रॉल करने में बहुत सिंपल जाता है, या फिर तुरंत यहाँ पे लिखने का ऐसा मार्केट वैल्यू फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, या फिर अभी हमें रीजन चाहिए, ठीक है, रीजन पे जाओगे, क्लिक करोगे, डायरेक्टली क्लिक इट। ये रियल टाइम प्रोजेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये चीजें इंटरव्यू में बोलने का क्या, हाँ, माई टेबल हैड 100 200 कॉलम्स, टू सेव माई टाइम आई यूज टू यूज चूज कॉलम, कॉलम एंड यहाँ पे फिर गो टू कॉलम से हम जाते थे। ऐसा आप बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। देखो यहाँ भी ऐसा ये कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी आपको एक चीज मैं और एक बताता हूँ। if your pbx file is increasing more, for example if your table had 200 column and you thought that means after creating power bi report you came to know that only 60 to 70 columns are needed, और आपने प्रॉपरली बिजनेस एनालिस्ट से बात किया, रिपोर्ट प्रोडक्शनाइज हो गया, सब हो गया, उस पर अभी बाद में काम नहीं करना, हमें पब्लिश करके स्केड्यूल रिफ्रेश डेली चालू रहेगा। तो अगर 70 कॉलम्स आर ओनली नीडेड एंड रेस्ट 130 कॉलम्स आर नॉट नीडेड ना, सो इन दैट केस देखिए रिमूव कॉलम्स करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। और वैसे भी ये जो पावर क्वेरी के स्टेप्स होते हैं, ये आप उसको, ये कंप्लीटली परमानेंट नहीं होती, ये टेम्परेरी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाउ ये रीजन का कॉलम है, ठीक है, मैं ये दो कॉलम, ठीक है, ये दो कॉलम मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिए। ठीक है, अभी ये चले गए। आप रियल टाइम प्रोजेक्ट में भी ऐसा कर सकते हो, क्लोज एंड अप्लाई भी कर दिया। ठीक है, यहाँ पे तो उसकी कोई जरूरत नहीं थी, द एग्जाम्पल विच आई एम गिविंग। ठीक है, देन आफ्टर वर्ड्स इफ client came with any new requirement and business analyst tells you that now we need to do this calculation that calculation, और फिर आपको वो कॉलम की जरूरत है, तो आप पावर क्वेरी में जाके वो स्टेप को रिमूव कर सकते हो, दैट्स इट। मैं आपको दिखाता हूँ फिर एक बार। अभी ये लोड करने को बहुत टाइम ले रहा है। हम्म, तो जस्ट यू हैव टू गो इन पावर क्वेरी एंड फॉर दिस अकाउंट टेबल, अगर आपने ये रिमूव इसका उड़ा दिया, तो आप अभी चूज कॉलम में जाओगे, गो टू कॉलम में जाओगे, आपको टेरिटरी रीजन का कॉलम दिख गया। ठीक है, बट सिर्फ पावर बीआई की फाइल की साइज कम करने के लिए द अननेसेसरी कॉलम, अनवांटेड कॉलम्स यू हैव रिमूव, सो दैट पीबीएक्स फाइल विल बी लेस। और अगर पीबीएक्स की फाइल की साइज कम होगी तो विजुअल लोडिंग टाइम डिक्रीज होगा, रिफ्रेश टाइम, पब्लिश टाइम डिक्रीज होगा, कुकीज कैकीज कैची वगैरह भी ज्यादा नहीं होंगे, सब चीजों पे हेल्प करता है वो। ठीक है, और जो कॉलम आप रिमूव कर रहे हो अगर वो डेसिमल नंबर डेटा टाइप में हो गया, टेक्स्ट में हो गया ना, तो फिर तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये डेसिमल नंबर वगैरह ऐसा नहीं, ये डेटा टाइप्स बहुत मतलब बहुत स्पेस लेते हैं। लिटरली मैं बोलता हूँ, डेसिमल और वो होल नंबर वाला ना, डेसिमल नंबर तो बहुत ही लेता है वो, तो मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग फ्रॉम रियल टाइम प्रोजेक्ट। ठीक है, बहुत ज्यादा लेता है वो जगह। ठीक है, तो दिस ये फिर देखो ये की प्रोज वगैरह भी है ना। अभी फॉर एग्जांपल ये बहुत सिंपल है, की प्रोज स्टॉप, मतलब अगर आप बोलोगे कि 20 रोज रखो, ठीक है, तो ये 20 रोज सिर्फ रखेगा इन दिस केस। ठीक है, यू कैन ऑल्सो रिमूव इट। बॉटम रोज रेंज वगैरह है। ये एक रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है रियल टाइम प्रोजेक्ट में। ठीक है, यहाँ पे मैं को एक एग्जांपल, अभी यहाँ पे डुप्लीकेट्स नहीं है, ये सब ये प्राइमरी की है मोस्टली, ये भी प्राइमरी की है।
ठीक है, इस पे दिखाता हूँ मैं, आपको तो पता ही है। ठीक है, ये जो डुप्लीकेट्स जो वैल्यू होते हैं ना, वो सबको रिमूव करता है। तो रिमूव डुप्लीकेट्स भी आपको, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू कन्वर्ट फॉरेन की टू प्राइमरी की, इन दैट केसेस आल्सो यू यूज दिस रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्प्लिट कॉलम भी है कि आप कॉलम को स्प्लिट कर सकते हो। ठीक है, बाय पोजीशन नंबर, ये मोस्टली नहीं यूज होता। ठीक है, बट फिर भी मैं आपको एक बार दिखाता हूँ बाय पोजीशन वगैरह। अगर आपने 10 बोला, ठीक है, तो 10 अल्फाबेट्स के बाद वो निकाल देता है। ये ज्यादा रियल टाइम प्रोजेक्ट में नहीं यूज होते। ठीक है, रियल टाइम प्रोजेक्ट में अभी क्या यूज होता है मैं आपको दिखाता हूँ। रिप्लेस वाला, ठीक है। तो नाउ लेट्स सी कि सबसे ज्यादा कौन सा है। नहीं, 11 का सिर्फ एक ही है। ठीक है, नहीं, लेट्स डू दिस, क्यूसी वी विल रिप्लेस। सी फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरव्यू क्वेश्चन, ठीक है, कितने तरह से रिप्लेस किया जाता है और कौन से वेज है। ठीक है, कितने तरह से और कौन से वेज है। पहला, होम टैब में जाके रिप्लेस ऑप्शन पे क्लिक करना। ठीक है, ये क्यूसी जो, जस्ट 2 मिनट्स। हाँ, सो ठीक है, तो कितने तरह से रिप्लेस कर सकते हो, तो ये जो क्यूसी है उसको हम रिप्लेस करेंगे इंडिया से। चलो, ठीक है। ठीक है, ऐसा रिप्लेस हुआ। ये बहुत सिंपल होता है, बट ये लगता है क्योंकि नल वैल्यू जो होती है ना, जब नल आती है ना, तो उसको हम जीरो से भी रिप्लेस करते हैं। ठीक है, रियल टाइम प्रोजेक्ट में उसका रीजन मैं बताता हूँ क्यों। बट लेट मी टेल यू फर्स्ट, रिप्लेस ये पहले तरीके से करने आता है। दूसरे, राइट क्लिक करने का, और यहाँ पे रिप्लेस है। ठीक है, देन क्यूसी विथ इंडिया। ठीक है, हो गया। ये दूसरी तरह से रिप्लेस है, और सेल पे क्लिक करके रिप्लेस। ठीक है, क्यूसी विद इंडिया, सेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्यूसी लिखने के नो नीड ऑफ दैट, ऑटोमेटिकली इट विल टेक इंडिया। ठीक है, दीज आर द थ्री वेज हाउ यू कैन डू रिप्लेस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन इन सेकेंड सिनेरियो बेस्ड टेक्निकल राउंड, सिनेरियो बेस्ड लॉजिकल राउंड। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी मैंने एक ऑप्शन आपको बोला कि नल को जीरो से रिप्लेस क्यों किया जाता है, पॉपुलेशन होगा ऐसा कुछ तो। फॉर एग्जाम्पल, सो लेट्स टेक एग्जाम्पल कि आप स्टेट्स पॉपुलेशन पे दिखा रहे हो, इंडिया के जो स्टेट्स है पॉपुलेशन पे दिखा रहे हो। तो डेटाबेस में आपके पास सारे स्टेट्स है और उनके पॉपुलेशन है। ठीक है, बट अगर ऐसा कोई स्टेट है उसका नल दिखा रहा है, नल, तो आपका जो ट्री मैप है, आपका जो पाई चार्ट है ना, तो उसमें खाली 9 ही स्टेट्स दिखाएंगे। जो नल वाला है वो वैल्यू नहीं लेता। ठीक है, आपके डेटाबेस में तो 10 स्टेट है, 10 स्टेट्स आर देयर इन योर डेटाबेस। 10 स्टेट्स आर देयर, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, तमिलनाडु है, और उसकी पॉपुलेशन है। बट फॉर एग्जाम्पल इफ एनी स्टेट इज हैविंग नल वैल्यू इन योर डेटाबेस, सो व्हेन यू विल फेच इन पावर बीआई, ठीक है, एंड यू विल शो इन योर विजुअल लाइक ट्री मैप, पाई चार्ट, डोनट चार्ट, सो इट विल शो ओनली 9 स्टेट्स। इट इज द विजुअल बिहेवियर। ठीक है, तो आपको जो नल वाला है वो बैकएंड से यहाँ पे जीरो करना है, और फिर उसका डेटा टाइप अगर डेसिमल है तो फिक्स डेसिमल नंबर करना है, सो दैट 0.00 ऐसा दिखाएगा, अगर डेसिमल चाहिए तो। ठीक है, वो अगर क्लाइंट का रिक्वायरमेंट होगा तो ऐसे। तो उस केस में फिर वो प्रॉपरली आपको दिखा देगा 10 स्टेट्स पाई चार्ट में, जो भी आपका विजुअल है। नहीं तो एक्सपोर्ट फंक्शनैलिटी जो होती है उसमें वो 9 स्टेट्स ही आएंगे, अगर नल आपने यूज करके विजुअल बनाया तो। इस वजह से रिप्लेस बहुत यूज किया जाता है। ठीक है, रिप्लेस, कंकैटिनेशन, ठीक है, अगेन रिमूव कॉलम्स, ये जो मैंने चीजें बताई है ना, ये रियल टाइम में बहुत यूज की जाती है।
प्रॉपर्टीज का जो एनेबल डिसेबल है ना, ये ज्यादा यूज नहीं किया जाता। एंटर डेटा जो है वो ज्यादा यूज नहीं किया जाता, बट इट इज इंपॉर्टेंट। कीप रोज, रिमूव रोज ये ज्यादा यूज नहीं किया जाता। हाँ, रिमूव कॉलम्स वगैरह यूज किया जाता है। ठीक है, लाइक दिस। नाउ कमिंग टू आवर 10th पॉइंट इज दिस अपेंड। ठीक है, 10th एंड आवर लास्ट पॉइंट is our append. So append is like combining of two tables. यहाँ पे आप देखोगे केसेस है और ये स्टेटस टेबल है, बट अपेंड करने के लिए अपेंड में आप दो टेबल, तीन टेबल, जितने भी टेबल है आप उसको अपेंड कर सकते हो। ठीक है, ऑलवेज टेक अपेंड क्वेरी एज न्यू so that when we will combine cases and status column, so that it will append and make new column। ठीक है, वही वही पे अपेंड नहीं करना चाहिए। जो भी आपका मेन चीज है ना, उसको वैसे ही रहने देना। जब मैंने कंकैटिनेशन, व्हेन वी हैव डन कंकैटिनेशन ना, सी आई हैव यूज्ड दिस ऐड कॉलम एंड वी क्रिएटेड दिस न्यू कॉलम हियर एट द एंड, हियर यहाँ पे, सो दैट आप अपना जो मेन कॉलम है ना, यहाँ पे न्यू कॉलम हमने बनाया, अपने मेन कॉलम को कुछ नहीं होने देने का। वैसे ही जब अपेंड कर रहे हो तो आवर मेन टेबल, नाउ वी आर गोइंग टू अपेंड टू टेबल्स, केसेस एंड स्टेटस। करेक्ट है, तो यहाँ पे अपेंड क्वेरी एज न्यू लेने का, सो दैट न्यू कॉलम, न्यू टेबल बन जाए। ठीक है, तो अपेंड में आपको क्या करने का है, टू टेबल्स है यहाँ पे, पहला आपका केसेस है, दूसरा स्टेटस है, एंड जस्ट ओके बोलना है। ठीक है, एक न्यू टेबल बन गया है देखो। ठीक है, बट अपेंड करते हो यहाँ पे देखो, टेबल कंबाइन है, ये एम लैंग्वेज का फंक्शन है टेबल कंबाइन। देखिए मैंने टेक्स्ट कंबाइन में आपको बता दिया, और ये मैं टेबल कंबाइन में बता रहा हूँ। ये ऐसी चीजें इंटरव्यू में बोलने की, हाँ आई नो दैट एम लैंग्वेज टेबल कंबाइन है, टेक्स्ट कंबाइन है, ऐसा वाला आप बोल सकते हो। तो केसेस और स्टेटस को कर दिया, बट इंटरव्यू क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट आर द प्री रिक्विजिट while doing append of two table, three table? So the first thing is the number of columns should be same। टेबल वन में अगर 10 कॉलम है तो टेबल टू में भी 10 कॉलम चाहिए। द डेटा टाइप शुड बी सेम, द नेम ऑफ कॉलम शुड बी ऑल्सो बी सेम। नेम अगर नहीं होगा तो चलता है, फजी ऑप्शन से मैच करता है, बट फिर भी द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड डेटा टाइप मस्ट बी सेम। ठीक है, ये चीज है अपेंड की। अभी अपेंड में दो टेबल्स को उसने कंबाइन किया, तो फिर यहाँ पे अगर टेबल वन में 50 रोज है और टेबल टू में 40 रोज है, तो अपेंड का रिजल्ट क्या आएगा? ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन फ्रेशर के लिए होता है, तो उसका रिजल्ट 90 आएगा, क्योंकि 50 प्लस 40 किया, जो यूनियन ऑल में करता है, यूनियन में करता है वही। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो केसेस, केसेस में 10,000 रोज है, स्टेटस में 10,000 रोज है, अपेंड में कितना दिखेगा? 20,000। परफेक्ट। ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम्स और कॉलम नेम सब सेम थे, डेटा टाइप सेम थे। उसने प्रॉपरली अपेंड भी कर दिया, यहाँ पे देख सकते हो आप, स्क्रॉल भी करते हैं हम नीचे। ठीक है, कभी भी रियल टाइम प्रोजेक्ट में ये इसको चेंज करने का, और इसको एम एम डी डी 4 टाइम्स वाई या एम एम डी डी वाई वाई, फॉरेन क्लाइंट होगा तो ठीक है एम एम डी डी, अगर इंडिया का क्लाइंट होगा तो डी डी एम एम भी चलता है, बट मोस्टली फॉरेन ही होते हैं। एम एम डी डी 4 टाइम्स वाई करने का, और क्लाइंट के सामने 4 टाइम्स वाई नहीं बोलने का, क्लाइंट के सामने वाई 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 ऐसा 4 टाइम बोलने का। ऐसा एक्सप्लेन करते वक्त ऐसा नहीं बोलने का, हाँ, कि वी आर फॉलोइंग दिस डेट फॉर्मेट एज एम एम डी डी 4 टाइम्स वाई। इन यूएस और इन फॉरेन these types of words are not used, you have to tell, you have to spell like this, mmdd y y y y। ठीक है, ऐसा बोलना पड़ेगा आपको, 4 बार y y y बोलना पड़ेगा, लाइक दिस। बट ऐसा 4 टाइम्स y ऐसा नहीं बोल सकता। ठीक है, होप आपको समझ में आया जो मैंने अभी बोला हो। ठीक है, सो सी दीज वर द सम important थिंग्स, लेट मी रिपीट इट वंस अगेन। जो रियल टाइम में पहला कंकेटिनेशन हमने देखा वो यूज होता है। ठीक है, एवरी रिपोर्ट भी बोल सकते हैं यूज होता है अगर टेबल मैट्रिक्स में वर्क कर रहे हो तो। ठीक है, एंटर डेटा जो दूसरा देखा वो इंपॉर्टेंट है, बट इट इज नॉट यूज ऑलवेज, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन और डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोजेक्ट एवरीथिंग।
थर्ड थिंग रिफ्रेश प्रीव्यू, ये तो डेली यूज होता है, ठीक है। दिस इज द ऑक्सीजन ऑफ योर पावर BI रिपोर्ट। सो ये डेली होता है। प्रॉपर्टीज अगेन जो मैंने आपको ये एनेबल लोड वगैरह बोला, ये अगेन सिचुएशन पे या फिर उस पर डिपेंड करता है। चूज रिमूव कॉलम्स, ये जो चूज डेली इट इज यूज, रिमूव कॉलम्स अगर पीबीआई परफॉर्मेंस वाइज का इशू होगा तो उस केस में हम करते हैं। की प्रोज वगैरह ये डिपेंड करता है अगेन, ठीक है। ये एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत सिंपल है। ये जो असेंडिंग डिसेंडिंग है ना, ये भी थोड़ा यूज होता है, ठीक है। ऐसे आप सॉर्ट कर सकते हो। राइट नाउ आई विल रिमूव दिस, बट ये असेंडिंग डिसेंडिंग पे करते हैं। एंड हाँ, लास्ट सेकेंड जो मैंने बोला, रिप्लेस वैल्यू, रिप्लेस वैल्यू तीन प्रकार से की जाती है और आप रिप्लेस वैल्यू करते हो। और नल से जीरो में इफ यू हैव टू रिप्लेस दैट, इन दैट केस आल्सो यू यूज इट। और अपेंड क्वेरी, अपेंड क्वेरी ये बार बार यूज नहीं किया जाता, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन, सो आई हैव एक्सप्लेन यू वेरी प्रॉपरली। एंड ऑल्सो द थ्री प्री रिक्विजिट्स विच आर देयर, दैट ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन यू प्रॉपरली, ठीक है। ये देखिए टेक्स्ट कंबाइन, अगेन एम लैंग्वेज, और वो अभी देखा था अपेंड में, वो टेबल कंबाइन था, ठीक है। So these were the important things which we use in real time in Power Query. This is the part one of our video. Okay, we will surely make part two also. So thanks for watching till end. If you have any kind of doubt, make sure you are replying within 1 hour, 2 hours. I will reply to your comment. And if you are new on our channel, make sure you are subscribing and pressing bell icon for all upcoming videos. And follow us on social media, especially Instagram, Telegram, everywhere. We post job openings, quiz, many important things we post, or any article if you are publishing, or like text message also. In that also we explain properly what are the Power BI's today's learning, or any hypothetical situation, how to handle that. Everything is posted in our Telegram channel. Okay, so follow there also. Thanks for watching till end. Please share the video. If you like the video, like it, and if you like, then you can share with your friends also. Thank you everyone.